اور انٹرنیٹ کی بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے، لیکن پرانے زمانے میں جب یہ تمام سہولتیں نہیں تھی تب پیغام پہنچانے کے لیے اور ایک دوسرے کا حال جاننے کے لیے ہم خط کا استعمال کرتے تھے۔ ابھی بھی یہ طریقہ مختصر سے علاقوں میں ہی رائج ہے، لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ اب یہ روایج ختم ہی ہو چکی ہوں گی، کیونکہ اب کوئی غریب سے غریب بھی انسان ہو تو اس غریب سے غریب انسان کے پاس بھی ایٹ لیسٹ سادہ فون تو اویلیبل رہتا ہی ہے۔ پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں، کچھ چند ہی، جن کے پاس اگر موبائل کی نیٹ ورک کی کچھ سہولت دستیاب نہیں ہے تو ان کو خط کے ذریعے وہ پیغام پہنچانے یعنی پیغام رسانی، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خط کا استعمال کرتے ہیں۔ چلیں گے اب دیکھتے ہیں پہلے یہ خط جس نے لکھا ہے، یعنی خط سبق جس نے لکھا ہے، خط نہیں، خط سبق جس نے لکھا ہے فاروق سید، اس کا ہم تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ تو بچوں، فاروق سید ہے جو ان کی پیدائش 5 ستمبر، کب ہوئی ان کی پیدائش؟ 5 ستمبر 1968 میں ہوئی، اور فاروق سید کا تعلق سولہ پور سے ہیں۔ فاروق سید کا تعلق سولہ پور سے ہے، اور آپ تلاش معاش کے سلسلے میں ممبئی آ کر بس گئے۔ ممبئی سے بچوں کے لیے ایک رسالہ گل بوٹے شائع کرتے ہیں۔ آپ اس رسالے کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں۔ ماہانہ گل بوٹے میں شائع شدہ اداریوں کا مجموعہ چھوٹی سی بات کے نام سے شائع ہوا ہے۔ ذیل کا خط آپ نے اپنی معلومات اور تحقیق کے سہارے لکھا ہے کہ ممبئی کو دنیا کے بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے عروس البلاد کا مطلب ہوتا ہے بچوں کی شہروں کی دلہن، عروس کا مطلب ہوتا ہے دلہن، تو شہروں کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اس سبق میں ممبئی کے چند قابل دید مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر بچوں کے دلوں میں ممبئی کا سیر کا شوق پیدا ہوگا، جو کہ ہمارا شہر ہے ممبئی۔ ہم اس سبق میں ممبئی کے بارے میں اور ممبئی کو گھومنے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے چلیں گے بڑھتی ہے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے پہلے یہ دیکھ کے ہم نے مصنف کا تعارف دیکھا کہ فاروق سید کا گاؤں کون سا ہے؟ سولہ پور، اور وہ اپنے روزگار حاصل کرنے کے لیے یعنی کام کے سلسلے میں ممبئی آ گئے، اور ممبئی آ کر وہ یہیں بس گئے۔ اس کے علاوہ آج بھی ممبئی سے ایک رسالہ نکلتا ہے، ایک کتاب شائع ہوتی ہے بچوں کی کہانیوں کی، جس کا نام ہے گل بوٹے۔ اس گل بوٹے کے وہ مدیر اعلیٰ مطلب ایڈیٹر بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ گل بوٹے میں جو مجموعہ شائع ہوتا ہے اس بچوں کی کتاب میں چھوٹی سی بات کر کے وہ اس میں شائع ہو چکا ہے ان کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بچوں، وہ چونکہ ممبئی میں آ کر پھنس گئے تو انہوں نے اپنی معلومات کی بنا پر ممبئی کے بارے میں اس خط میں بتایا ہے کہ ممبئی کو شہروں کی دلہن کہتے ہیں۔ کیوں شہروں کی دلہن کہتے ہیں؟ کیونکہ ممبئی شہر میں ہر چیز ہے، رونق ہے، روزگار ہے، سیر و تفریح کے مقامات ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو ہر جگہ لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے، وہ دلہن کی طرح سج جاتا ہے۔ کہاں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کی تاریخ، ہمارا ایڈریس، یہ ہم سیدھے ہاتھ کی طرف لکھتے ہیں۔ فرحان، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ہاں، تحسین، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اس خط کو شاہ امتیاز بشیر نے لکھا ہے، اور وہ رہتے ہیں 115 پولیس لائن، ماہم، ممبئی 400 یا 40016، اور اس خط کو کب لکھا ہے انہوں نے؟ 9 نومبر سن 1914 کو لکھا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں خط لکھ رہی ہوں تو پہلا میرا نام آئے گا، پھر میں کہاں رہتی ہوں، ممبرا، پھر ممبرا کا پہلے میں ممبرا کا ایڈریس لکھوں گی، پھر ممبرا لکھوں گی، ممبرا کا پن کوڈ لکھوں گی، اور میں اس کی تاریخ لکھوں گی جس دن میں خط لکھ رہی ہوں۔
تو शाह इम्तियाज 115 पुलिस लाइन माहिम मुंबई 400116 9 नवंबर सन 1914 को उन्होंने खत लिखा। किसे खत लिखा? अपने अब्बा जान को कि प्यारे अब्बा जान। अब अब्बा जान उनसे उम्र में भी बड़े हैं और उनके वालिद साहब हैं, तो उनको क्या करेंगे? अस्सलाम अलैकुम। अगर हम अपने से छोटों को खत लिखते हैं या अपनी बराबरी के लोगों को खत लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि आप ही को वगैरह को लिखते तो हम लिखते हैं आदाब, छोटों के लिखते तो बहुत बहुत प्यार। तो प्यारे अब्बा जान अस्सलाम अलैकुम। अब खत वो शुरू कर रहे हैं तो खत की पहली लाइन को थोड़ा और सरका के लिख रहे हैं कि आपकी दुआओं से मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मैं यहाँ पर कहाँ पर? मुंबई में खैरियत से हूँ। मुझे मुंबई पहुंचे 8 रोज हो चुके हैं। कितने रोज हो चुके हैं? 8 रोज हो चुके हैं। मुंबई पहुंचकर उनको 8 रोज हो चुके हैं। चचा जान के साथ मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हूँ। इतवार की सुबह में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचा। चाचा जान मुझे लेने के लिए स्टेशन पहुंच चुके थे। पहली मर्तबा इतना बड़ा स्टेशन देखकर मैं दंग रह गया। चाचा जान ने बताया कि स्टेशन की इस इमारत को हाल ही में कौमी वर्षे की इमारत में शामिल किया गया है। स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी के जरिए हम चाचा जान के घर की तरफ रवाना हुए। वो अपने वालिद साहब को खत लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं यहाँ मुंबई आराम से पहुंच गया हूँ और मुझे तकरीबन 1 हफ्ता मतलब 8 रोज हो चुके हैं और मैं यहाँ 8 दिन में मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर भी कर चुका हूँ। और इसके अलावा इतवार की सुबह में यानी जब मैं गांव से निकला तो मैं कब पहुंचा? इतवार के दिन पहुंचा अब्बूजान, और मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचा, यानी जो हमारा CST है वो वहाँ ट्रेन से पहुंचे। और वो शाह इम्तियाज बशीर इतना बड़ा स्टेशन देखकर हैरान रह गए। दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना। इसके अलावा उनके चाचा ने बताया कि इस स्टेशन को अभी जल्दी ही कौमी वर्षे यानी कौमी इमारतें में कौमी वर्षे मतलब कि कौम के लिए वक्त, हाँ आ रही है ताजमीन आवाज, कौमी वर्षे में शामिल किया गया है। और जैसे ही वो लोग स्टेशन से बाहर निकले तो टैक्सी पकड़कर घर की तरफ रवाना हो गए। स्टेशन के सामने बच्चों मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत है और उसके करीब अंजुमन इस्लाम का तालीमी अदारा और आगे हाउस है। हाँ, हमारे जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है जहाँ से हमको बैग और कॉपी किताब पेंसिल रबर और जो हमारा स्कूल जिसके अंडर में चलता है कि ये है वो मुंबई महानगर पालिका की बड़ी इमारत से यहाँ से ही हमारे सामने यहाँ से आती है। और ये कहाँ स्टेशन के CST स्टेशन के एकदम सामने। इसके अलावा इसके बाजू में ही अंजुमन इस्लाम का जो कि एक तालीमी अदारा है, जो कि बहुत मशहूर अदारा है, जो कि हमारे बच्चे भी जब 8वीं 9वीं पास हो जाते हैं 10वीं पास हो जाते हैं तो अंजुमन इस्लाम में पढ़ाई जाते हैं। और उसी के पास हज हाउस भी है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की इमारत है ये, और उसके आगे हज हाउस भी है। ये अपने वालिद को वो तमाम चीजें बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक क्या क्या देखा। तो अभी 2 चीज ये बता दिए उन्होंने। ये देखिए हज हाउस बना हुआ है ये वाली तस्वीर में। अब आगे क्या बोलते हैं वो कि दूसरे दिन हम गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए। यहाँ पर मोटर बोट के जरिए समुद्र की सैर कराई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया से लाइट हाउस का नजारा बहुत खूब है। सामने ताज होटल महल प्लेस की शानदार इमारत खड़ी नजर आती है। ये वाले पैराग्राफ में बच्चों तो ये वाले पैराग्राफ में बच्चों वो गेटवे ऑफ इंडिया गए और गेटवे ऑफ इंडिया में वहाँ मोटर बोट के जरिए उन्होंने समुद्र की सैर की और इसके अलावा उन्होंने वहाँ ताज होटल भी देखा।
یعنی عمارت دیکھی تاج ہوٹل کی جو کہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی, اور لائٹ ہاؤس بھی دیکھا. یہ والے پیراگراف میں ابھی تک انہوں نے کتنی چیز دیکھ لی؟ برن ممبئی مہانگر پالیکا کی عمارت, انجمن اسلام کا دارا, حج ہاؤس, گیٹ وے آف انڈیا اور تاج ہوٹل. اس کے علاوہ اس کے آگے بڑھتے ہیں, قریب ہی گیٹ وے کے قریب ہی بچوں چھترپتی شیواجی میوزیم بھی ہے. اس میں کئی نادر اور قدیم اشیاء, نادر مطلب نایاب اور نہ ملنے والی چیزیں, اور پرانی سے پرانی چیزیں دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا, یعنی میں ایک دم حیران رہ گیا. پاس ہی ممبئی یونیورسٹی ہے. اس کے احاطے میں ایک بہت بڑا مینارہ ہے جس میں راجہ بائی ٹاور کہتی ہیں. اس کے احاطے میں ایک بہت بڑا مینار ہے جسے راجہ بائی ٹاور کہتے ہیں, اور مینار کے اوپری سرے پر ایک گھڑیال, گھڑیال مطلب گھڑی, گھڑی نصب ہے. ودھان بھون کی خوبصورت عمارت بھی یہاں سے نظر آتی ہے. اب اس پیراگراف میں بچوں انہوں نے کیا کیا دیکھا؟ میوزیم دیکھا, چھترپتی شیواجی میوزیم دیکھا, ممبئی یونیورسٹی دیکھی, راجہ بائی ٹاور کا مینار دیکھا, اور اس کے علاوہ جو یہاں گھڑیال نصب ہے, جو کہ گھڑی نصب ہے مطلب بنی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے راجہ بائی ٹاور پہ, اور جو وقت بتاتی ہے وہ کہ ٹیچر کا میسج ابھی نہیں بھیجیں گے, پہلے سمجھ لیں گے, وہ دیکھا. اس کے علاوہ ودھان بھون, ودھان بھون کی جو خوبصورت عمارت ہے وہ بھی یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ہے. یہ دیکھو اس تصویر میں یہ تاج ہوٹل ہے. آسمان کو چھوتی ہوئی اونچی اونچی عمارتوں والے اس علاقے کو نریمن پوائنٹ کہتے ہیں, جہاں نریمن پوائنٹ جو کہ سی ایس ٹی کی طرح بھی ہے, اور وہاں پر بچوں بہت ساری عمارتیں آسمان کو چھو رہی ہے, یعنی اتنی لمبی لمبی عمارتیں ہیں. یہ دیکھو گھڑیال جہاں نصب ہے راجہ بائی ٹاور. اب انہوں نے کس سے سفر کیا؟ جو کہ ہماری ممبئی کی شان ہے, جان ہے, لوکل. انہوں نے ہم نے لوکل ٹرین کے ذریعے چرچ گیٹ سے چرنی روڈ جانے کا فیصلہ کیا. اب ان لوگ نے یہ جب سامان دیکھ لیا, ابھی تک وہ کہاں گھوم رہے تھے؟ سینٹرل لائن پر گھوم رہے تھے. سینٹرل لائن یعنی جو ہماری ادھر کی سینٹرل لائن ہے. اب وہ کہاں گئے؟ ادھر ویسٹرن لائن پہ گئے, دادر کی طرف گئے, باندرا کی طرف گئے, چرچ کی طرف گئے, چرچ گیٹ کی طرف گئے. تو لوکل سے انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا, فیصلہ کیا, گیٹ سے چرنی روڈ جانے کا فیصلہ کیا. جہاں پر چرنی روڈ میں کیا ہے بچوں؟ جہاں پر مچھلی گھر ہے. ہم ٹرین میں سوار ہوئے, اللہ کی پناہ لوگ ڈبے میں اس طرح سوار ہو رہے تھے جیسے کوئی بے رحمی سے انہیں ڈبے میں ٹھونس رہا ہو. بڑی مشکل سے ہم چرنی روڈ اسٹیشن اترے. سامنے ہی مچھلی گھر کی خوبصورت عمارت. یہاں دنیا کی عجیب و غریب رنگ برنگی چھوٹی بڑی غرض کے مختلف قسم کی مچھلیوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے. ان مچھلیوں کو کانچ کے مرتبانوں میں مرتبان مطلب کہ کانچ کے برنی, کانچ کا گھر جو فش ٹینک ہوتا ہے ویسے مرتبانوں میں سمندری ماحول فراہم کیا گیا ہے. آپ لوگ ممبئی میں رہتے ہیں, آپ لوگ بخوبی لوکل کے رش اور لوکل کی گردی سے بخوبی واقف ہے کہ گردی لوکل میں کس طرح رہتی ہے. تو وہ بچوں کے ممبئی گھومنے آئے تھے, ان کے گاؤں میں لوکل کیا ٹرین وغیرہ بھی نہیں رہتی ہے, تو وہ لوکل کی گردی دیکھ کر کیا بول رہے, اللہ کی پناہ مانگ رہے کہ اللہ کی پناہ. لوگ ایسے چڑھ رہے تھے جیسے کہ انہیں زبردستی کوئی ٹھونس رہا ہو. پھر وہ کیسے بھی کر کے چرنی روڈ اسٹیشن اترے. پھر وہاں پر انہوں نے مچھلی گھر میں مختلف قسم کے عجیب و غریب یعنی طرح طرح کی نت نئے رنگوں کی ڈیزائنوں کی رنگ برنگی مچھلیاں دیکھی, اور ان مچھلیوں کو فش ٹینک میں سمندری ماحول میں رکھا جائے تاکہ نکالیں تو مچھلی مر جائے گی. وہ مچھلی گھر کا معائنہ کرنے کے بعد, مچھلی گھر کا سیر کرنے کے بعد بچوں شاہ امتیاز اپنے چاچا کے ساتھ مچھلی گھر کا معائنہ کر بعد مچھلی گھر سے نکلے, اور بس کے ذریعے مشہور گھومنے کا مقام مچھلی گھر سے ہم بس کے ذریعے مشہور تفریحی مقام گرگام چوپاٹی ہوتے ہوئے جوتا گھر پہنچے.
मछली घर देख लिए, उसके बाद वो गिरगाम चौपाटी गए, वहां चौपाटी पे घूमे फिरे थोड़ा, वहां से चौपाटी पे से निकले, जूता घर पहुंचे। जूता घर की इमारत बच्चों कैसी है, जूते की शक्ल की है, एक छोटी सी इमारत है, और जिसमें ये जहाँ पर वाक़ है, ये जिस बाग में वाक़ है, इसे कमला नेहरू पार्क कहते हैं। जूता घर जिस बाग में वाक़ है ना, इसे कमला नेहरू पार्क कहते हैं। कमला नेहरू पार्क, कमला नेहरू कौन थी? कमला नेहरू हमारे वजीर आजम चाचा नेहरू की बीवी थी, तो उनके नाम से कमला नेहरू पार्क बनाया गया है। तो इस कमला नेहरू पार्क में जूता घर वाकई है। कितनी सारी चीजें देख ली उन्होंने, शुरू से स्टार्ट करा मुंबई। हाँ, क्या क्या देखेंगे हम बाद में रिवाइज करेंगे, वरना हमारा टाइम, एक तो ऑलरेडी हमने बहुत लेट शुरू किया है। अब मछली घर भी देख लिया, गिरगाम चौपाटी भी घूम ली, कमला नेहरू पार्क में जूता घर भी घूम लिया। ये एक दिन में इतनी सारी चीजें देखने के बाद दोनों चाचा भतीजा, मतलब के शाह इम्तियाज और उनके चाचा, दूसरे दिन डबल टेकर बस, जो कि हमारे मुंबई में अब बहुत कम चल रही है, लेकिन पहले बस डबल टेकर यानी एक के ऊपर एक बस होती थी, उस बस में सफर का मजा लेते हुए वो मशहूर चिड़ियाघर रानी बाग पहुंचे, जहां पर अभी पिछले साल हमारे थर्ड वालों की पिकनिक गई थी रानी बाग बायखल्ला में, वो वहां रानी बाग पहुंचे। यहाँ तरह तरह के जानवर और परिंदे देखे उन्होंने। फिर रानी बाग से बायखल्ला में रानी बाग गए, रानी बाग से थोड़ा आगे फिर हम हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हुए। हाजी अली की दरगाह समुंदर में साहिल के करीब वाक़े हैं, और पास ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारतें हैं। जब हाजी अली के पास ही बच्चों नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारतें हैं, और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारत में ना बच्चों निज़ाम शमसी और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारत में बच्चों निज़ाम शमसी और सितारों की गर्दिश की मालूमात दी जाती है, और करीबी नेहरू साइंस सेंटर भी बनाया गया है। नेहरू प्लानिटेरियम आप लोग में से कुछ बच्चे गए होंगे, और कुछ अगर नहीं गए होंगे तो लॉकडाउन खुलने के बाद हम वहां जाएंगे। वहां पर रात पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, और पूरा आसमान पर ऐसा ऐसा सितारा या ऐसा नजारा पेश किया जाता है, ऐसा लगता है जैसे हम वाकई में खुले आसमान के नीचे हैं, और पूरे हम सितारों की सैयारों की गर्दिश और उनके बनने के अमल को देख रहे हैं। नेहरू प्लानिटेरियम ये वर्ली में है, बायखल्ला में। तो वहां पर उन्होंने वो सितारे और सैयारों की मालूमात हासिल करी। ये देखो जूता घर की इमारत, मीटिंग खत्म हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन नहीं करना है, हम इसके आगे का बाद में कंटिन्यू करेंगे। वैसे मैं कोशिश करती हूँ अभी और करने की। इसके अलावा मुंबई में तो आप लोग रहते हैं, मुंबई में आप लोगों को मालूम है कि जगह जगह क्या है, जगह जगह शॉपिंग मॉल रहते हैं, जहां पर माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तक दस्तियाब होती है। एक मिसाल है, मिसाल इसलिए ये कि मतलब मामूली सी चीज तक आपको जो चीज चाहिए, बड़ी से बड़ी चीज शॉपिंग मॉल में दस्तियाब हो जाती है, चाहे वो किराना हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे जो भी चीज हो, वो एक शॉपिंग मॉल में अवेलेबल हो जाता है। और इसके अलावा चचा जान ने उन्हें क्या बताया कि मुंबई में जगह की किल्लत, जगह की कमी, ज्यादा आबादी और ज्यादा सवारियों की वजह से, कसरत मतलब की ज्यादती की वजह से बेशुमार मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता चंद यानी पिछले चंद सालों से इन मसाइल पर काबू, इन मसलों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा स्टेशनों के पास की भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे स्काई वॉक बनाए गए हैं, जिन पर चलकर आसानी से सड़क की दूसरी जानिब पहुंचा जा सकता है। यानी स्टेशनों के पास का रश कम करने के लिए और सड़क को पार करने के लिए बड़े बड़े स्काई वॉक बनाए जाते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करके आसानी से सड़क पार कर सकते हैं। बांद्रा के करीब समुद्र में बना हुआ सी लिंक इंजीनियरिंग की शाहकार है। शाहकार मतलब एकदम नमूना है, नायाब है कि कितना उन्होंने समुद्र में बांद्रा सी लिंक बनाया है। यह पुल सुतूनों पर और फौलादी कमानियों पर बना है, यानी इस पुल खंभों पर और फौलादी कमानियों पर बना है। और रात में जब लाइट
जगमगाती हुई लाइट रहती है इस पुल पर। और इस पर से जो मोटरें गुजरती है रात में तो वो बहुत ही शानदार और दिलफरेब होती है। वो 12 पर ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये है नेहरू प्लानिटेरियम है और साइंस सेंटर है। इस इमारत में ये वर्ली में वाक़ है। और ये जो स्काई वॉक बनाया गया है रश से बचने के लिए। सीलिंग पर जो गुजरती हुई कारों की रोशनी है, इस पर सरती हुई मोटरें इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करती है, मतलब बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। इसके अलावा बच्चों हमारी मुंबई में लोकल के अलावा क्या क्या आ चुका है। आजकल मुंबई में मोनो रेल और मेट्रो रेल के भी बड़े चर्चे हैं। मोनो रेल उधर चलती है, कहाँ चलती है, पनवेल साइड में चलती हैं। और मेट्रो रेल हमारे घाटों पर बांद्रा जोगेश्वरी में चलती है। तो मोनो रेल और मेट्रो रेल के बड़े चर्चे हैं। मोनो का मतलब होता है छोटा, तो ये मोनो रेल बहुत ही छोटी है, सिर्फ 2 डिब्बे होते हैं, जबकि मेट्रो रेल में डिब्बों की तादाद ज्यादा होती है। इंतहाई ऊंचाई पर बने हुए पुलों पर पटरियां बिछाई गई हैं। ये ट्रेनें अब इन्हीं पटरियों पर दौड़ती है, लोकल की पटरी पर नहीं दौड़ती, ये उनकी अलग पटरियों पर दौड़ती है। और दोनों किस्म की ट्रेनों में खुद कार दरवाजे हैं जो स्टेशन आने पर खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। खुद कार दरवाजे मतलब ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, खुद से खुलते हैं, खुद से बंद होते हैं। मुख्तसर ये कि मुंबई में जगह जगह हर जगह तफरीह के कुछ न कुछ मुकामात है। और ये शहर अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता है। मैं घर आऊंगा तो यहाँ की सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे। अम्मी और आपा को आदाब, आपका प्यारा बेटा इम्तियाज। यानी कि हमने इसमें क्या देखा, ये देखो बांद्रा का सीलिंग जो कि लोहे की पुलों पर और कमानियों से बना है। आप लोगों का आज का होमवर्क है कि अल्फाज माने ये जो यहाँ लिखी हुई है ये लिखकर सेंड करना है और एक जुमले में जवाब भी लिखकर मुझे सेंड करना है। अल्फाज मानी में हमने पढ़ा कि दंग रह जाना मतलब हैरान रहना, कौमी वर्षा मतलब कौम की पुरानी यादगार, लाइट हाउस रोशनी का मीनार, म्यूजियम अजायब घर, नदी मतलब कम मिलने वाली, सब होना, जुड़ जाना, लग जाना, इस वक्त पैदल रास्ता चलने वालों के लिए ऊंचाई पर बनाया गया पुल। एक जुमले में जो किए कि खाना भी खाई नहीं। हाँ 2 बजे तेरी इसमें कर लो। हाँ मैं ला समा बड़ी याद तो खाना डाल प्योर showing you माँ मैं वो वाला थोड़ी लगाइए नहीं लगे वो बोल
छह मिनट बाकी है। हाँ, कितने मिनट चलेंगे? ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत हमने देखा कि इम्तियाज अली ने कहाँ से स्टार्ट करा घूमना, यानी मुंबई की सैर करना बृहन मुंबई महानगर पालिका के ऑफिस से, जो कि हमारा हेड ऑफिस है। हमारा क्या है वो हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से उन्होंने घूमना स्टार्ट किया। हेड ऑफिस देखा, अंजुमन इस्लाम की इमारत देखी, हज हाउस देखा। उसके बाद दूसरे दिन फिर वो गेटवे से शुरू किया, गेटवे ऑफ इंडिया गए। वहां से फिर वो बोटिंग की, उन्होंने समुद्र की सैर की बोटिंग के जरिए। फिर लाइट हाउस देखा, यानी लाइट का मीनारा देखा। फिर वहां से आ रही है ना आवाज, आ रही है? लाइट हाउस देखा। लाइट हाउस के बाद ताज होटल, ताज प्लेस देखा, जो ताज होटल है हमारी मुंबई की शान। और ओबराय होटल, ताज होटल, ये मुंबई के मशहूर होटल है, वो देखा। उसके बाद विधान भवन देखा। और जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को भी कल वैसे ही बोलना है कि शाह इम्तियाज ने क्या क्या देखा। मैं आप लोग से कल पूछने वाली हूँ, इसलिए खत सबक अच्छे से आप लोग एक बार और पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर वो कहाँ गए, लोकल के जरिए, और उन्होंने लोकल का रश देखा। ऐसा लग रहा था कि लोगों को जबरदस्ती ठोसा जा रहा है, इतना रश था। लोकल के जरिए चर्च गेट से चन्नी रोड गए। वहां पर चन्नी रोड में मछलियों का मछली घर देखा। मछली घर में मछली घर के बाद म्यूजियम देखा। मछली घर में मुख्तलिफ किस्म की मछलियां हैं। फिर गिरगाम चौपाटी गए। गिरगाम चौपाटी के बाद नरीमन पॉइंट, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो देखा। नरीमन पॉइंट के बाद बांद्रा से हाँ, दूसरे दिन फिर वो रानी बाग गए। रानी बाग से फिर हाजी अली गए। हाजी अली से बांद्रा सीलिंग देखा। इसके अलावा इस तरह उन्होंने मोनो रेल, मेट्रो रेल सब देखा। यानी कि गर्ज ये कि मुंबई में जगह जगह घूमने और फिरने और सैर तफरी के मकामात मौजूद है, जो कि हम कभी हमारी छुट्टी रहती है तो हम भी घूमने फिरने जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात की सैर के लिए जाते हैं। तो ये हमने देखा खत में। अब मैंने अल्फाज मानी भी आप लोगों को बता दी। अल्फाज, मेरी आवाज आ रही है कि एक बार चैट बॉक्स में लिख कर भेजिए तो जरा कोई भी एक। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सिर्फ अजमीन को क्यों नहीं आ रही है आवाज? बार 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 मुझे लिख कर भेजिए। अच्छा, अब हम अल्फाज माने के बाद क्या देखेंगे? एक जुमले में जवाब देंगे। एक जुमले में जवाब स्टार्ट करते हैं हम। हमने ये देखा, खत देखा हाजी अली गए, जूता घर देखा, बांद्रा सीलिंग देखा, नेहरू प्लानिटेरियम देखा, नेहरू साइंस सेंटर घूमा उन्होंने, स्काई वॉक देखा। गर्ज के मुंबई के हर चीज को उन्होंने एंजॉय किया, सैर तफरी की। ये जो मैंने देखी आप लोगों को बताई बच्चों के, यहाँ पर हमने अल्फाज मानी अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। आप एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, इम्तियाज को मुंबई आए हुए कितने दिन हो चुके हैं? कितने दिन हो चुके हैं इम्तियाज को? 8 रोज। जवाब क्या आएगा? इम्तियाज को मुंबई आए हुए 8 रोज या 8 दिन हो चुके हैं। नंबर 2, खत में स्टेशन के बाहर किन इमारतों का जिक्र है? तो खत में स्टेशन के बाहर वाला लिखना है सिर्फ। तो खत में स्टेशन के बाहर 3 इमारतों का जिक्र किया उन्होंने। कौन सी इमारतों का? पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका का ऑफिस देखा, उसके बाद अंजुमन इस्लाम अदारा देखा, और हज हाउस। ये 3 ही लिखना है। मुंबई यूनिवर्सिटी की खास पहचान क्या है? तो आप लोग खत पढ़ेंगे, खत में आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी की खास पहचान क्या है। इसके अलावा नंबर 4, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में कौन सी अशिया है? तो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में बहुत ही कीमती और नायाब अशिया है।
حاجی علی درگاہ کہاں واقع ہے؟ حاجی علی درگاہ ورلی میں واقع ہے. نمبر 6 ممبئی دنیا کی اہم شہروں میں کیوں شمار ہوتا ہے؟ تو ممبئی دنیا کے اہم شہروں میں کیوں شمار ہوتا ہے؟ یا تو آپ لوگ مصنف کے تعارف میں سے بھی لکھ سکتے ہو، یا تو یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ممبئی میں جگہ جگہ تفریحی مقامات ہے اور یہ شہر اپنی خوبصورتی اور ترقی کی وجہ سے دنیا کے اہم شہروں میں شمار ہوتا